before starting the actual problems of working capital, now first of all we are going to start with the pro forma of how to calculate working capital required. Okay, so this is a standard pro forma. Those who have attended earlier lecture of working capital, उनको ये pro forma already मालूम है, PPT में मैंने दिखाया था ये, फिर भी हम लोग repeat कर रहे हैं. Statement showing working capital required. We are going to make a 3 columns for amount and 1 column for particulars. Roman 1 is about basically working capital का formula क्या है? Current assets minus current liabilities. So Roman 1 is about current assets. In current asset, first current assets will be stock. First current asset will be stock. In stock, there are 3 types of stock. Stock of raw material, stock of WIP and stock of finished goods. Now stock of raw material directly we have to write in the second column. For stock of WIP, what is stock of WIP? तो जिस गुड पे आधा प्रोसेसिंग कंप्लीट हुआ है, आधा प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुआ है. Even though the production is halfly completed, we require 100% material. So ये हमें separately दिखाना है. Raw material 100%, direct labor 50% and overheads 50%. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो लेबर एंड ओवरहेड्स 50-50% लेना है. अगर स्पेसिफिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है तो उसके हिसाब से लेना है. अदरवाइज तो स्टैंडर्ड क्या लेना है? 100% रॉ मटेरियल, 50% लेबर एंड 50% overheads. Number 3 is stock of finished goods. Okay, so there are 3 stock. Number 1 stock of raw material, number 2 stock of WIP. WIP में हमने इन तीनों का इनर कॉलम में फर्स्ट कॉलम में टोटल करके फिर सेकंड कॉलम में लिया. रोमन 3 will be stock of finished goods जो हमने डायरेक्टली सेकंड कॉलम में लिखा. फिर 1, 2, 3 तीनों का टोटल आपका जाएगा थर्ड कॉलम में. दिस विल बी योर टोटल स्टॉक. Then next current assets will be debtors. Debtors you can show at cost price or at market price, but it will be easy to show it on selling price if the information is not given. So debtors into bracket selling price हमने लिखा यहाँ पे और amount हमने last column में लिखा. Cash and bank balance to be maintained is already given in the problem जो आपको merely copy करना है इधर. And number D is prepaid expenses. Any expenses prepaid और paid in advance से यहाँ पे आएगा. इन सभी के टोटल को हम लोग बोलेंगे टोटल करंट एसेट्स. रोमन 2 करंट लाइबिलिटीज, उसमें सबसे पहले आएगा क्रेडिटर्स, उसके बाद एनी टाइप ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, whether it is wages, overheads, manufacturing overheads, administrative overheads which are outstanding यहाँ पे आएगा. And C is bank overdraft. The total of these 3 is known as total current liabilities. Now total current assets minus total current liabilities equal to working capital 1 minus 2. I hope all of you understood the format. First of all problem में देखना है have they given cost per unit and unit produced? No. इन दिस प्रॉब्लम ऐसे कुछ भी नहीं दिया है. सो यहाँ पे आपको सिंपली एक ही वर्किंग नोट करना पड़ेगा. वो कौन सा? देखो फर्स्ट लाइन में दिया है मेसेस आरआर लिमिटेड सेल्स इज प्रोडक्शन ऑन 20% ग्रॉस प्रॉफिट, 20% ऑन सेल्स, 20% सेल्स लेके वो प्रॉफिट ये करते हैं, राइट? तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? देखो सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, सबसे पहले हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इसका वर्किंग नोट. ओके, अगर ये टाइप का प्रॉब्लम है तो वर्किंग नोट एकदम छोटा सा आएगा. नॉर्मली हम लोग लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, और यू मे राइट द फॉर्मूला सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स less gross profit that is equal to cost of goods sold. Now in this sum sales are given how much? See 80 lakhs, correct?
sales are given 80 lakhs less gross profit 20% of sales. So 80 lakh का 20% we have to take. 20% of 80 lakhs. It will be 16 lakhs. Now 80 lakhs minus 16 lakhs, how much? Correct, 64 lakhs. So it will be 64 lakhs. Correct? So I hope तुम लोग को ये समझ में आया होगा कैसे करना है. So working capital required. Okay? Draw like this. Statement showing working capital required. Now in this sum, stock of WIP information is not given, correct? ये सम में स्टॉक ऑफ WIP का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो नो नीड ऑफ 3 कॉलम्स. आप 2 कॉलम में भी ये कैलकुलेशन कर सकते हो. ड्रॉ द कॉलम इन योर नोटबुक. Statement showing working capital required. Particulars. Amount rupees, amount rupees. Okay. Now as per the format, Roman 1 will be your current assets. Okay. Roman 1 will be your current assets. Just a moment. Roman 1 will be your current assets. Current assets, correct? In current assets, first part we have to take is as A. Continue, stick on your format. A, that will be stock. Okay. First is stock. In stock again, first will be, in stock again, first stock will be stock of raw materials, correct? Stock of raw materials. अभी ये कॉलम जो है इसकी हमें जरूरत नहीं है. अगर आपने पहले से ड्रॉ करके रखा है, नो इश्यूज, उसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दे सकते हैं हम लोग. नाउ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दिया है, देखो. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 2 months. नाउ 1 महीने का रॉ मटेरियल कितना दिया है, देखो. एक साल का रॉ मटेरियल कितना दिया है, देखो आपको 24 lakhs. So how we are going to get calculated? 24 lakhs for 1 year divided by 12 किया, so you will get answer of 1 month, correct? Into stock of raw material how many months बोला है, 2 months. So into you have to take 2 months. मैं रिपीट करती हूँ ये. देखो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स इंफॉर्मेशन इज गिवन एज 24 lakhs. देखो 24 lakhs yearly amount is given. So to calculate monthly amount, we have to divide it by 12 and we have to take stock of raw material for 2 months. इसलिए 24 lakhs divided by 12 into 2 months. So how it will be? कितना आएगा amount? Calculate करो और मुझे बोलो. How much will be the amount?
Correct. It will be 4 lakhs. Okay. Now, next स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद नंबर 2 हमें लेना है WIP के बारे में. दे हैव नॉट गिवन इन इंफॉर्मेशन, सो सीधा हम लोग लेने वाले हैं स्टॉक ऑफ finished goods. Now remember that finished goods are calculated at cost of goods sold. How much cost of goods sold yearly we have got in our working note? 64 lakhs, correct? And stock of finished goods कितना बोला है? 1.5 month. So slowly ध्यान रखो यहाँ पे कैसे करना है. देखो 64 lakhs will be for 1 year. So पहले मंथली निकालना है, इसलिए डिवाइडेड बाय 12 किया और उसको मल्टीप्लाई करेंगे. हाउ मेनी मंथ्स? 1.5 यानी 1.5 मंथ्स. करेक्ट. कैलकुलेट करके देखो, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी रही हूँ. 64 lakhs हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था. करेक्ट. डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, इसलिए 12 आया. राइट. ये आया मंथली आपका. इनटू हाउ मेनी मंथ्स? 1.5 months. 1.5 months. So it will become 8 lakhs. कितना आएगा आपका ये? 8 lakhs. Okay. अभी ये हो गया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. करेक्ट. अभी आपको 2 ही टाइप के स्टॉक्स यहाँ पे दिए, तो उसका टोटल आपको लेना है सेकेंड कॉलम में. करेक्ट. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल ऑफ स्टॉक 8 lakh plus 4 lakh, it will become 12 lakhs. Okay. Now A part is over. Stick on your format. A के बाद लेते हैं हम लोग स्टॉक के बाद डेटर्स. करेक्ट. स्टॉक के बाद हम लोग लेते हैं डेटर्स B. And we are taking debtors at सेलिंग प्राइस. तो वैसे ही ब्रैकेट में लिखना है डेटर्स एट सेलिंग प्राइस. करेक्ट. नाउ पहले चेक करना है हैव दे गिवन एनी कैश सेल्स? नो. इफ दे हैव नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कैश सेल्स, ऑल डेटर्स आर कंसिडर एज, ऑल सेल्स आर कंसिडर एज ऑन क्रेडिट. सो यहाँ पे क्या दिया देखो, सेल्स एट 3 months क्रेडिट, यानी डेटर्स 3 महीने के क्रेडिट पे. डेटर्स कितने हो गए आपका? 3 महीना हो गया. सो लेट अस कैलकुलेट. 1 महीने का सेल, 1 साल का सेल्स कितना है? 80 lakhs. सो 1 month का निकालने के लिए हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, मल्टीप्लाई बाय 3 months. नाउ लेट अस कैलकुलेट इट. वी हैव अ कैलकुलेटर, सो लेट अस कैलकुलेट इट. 80 lakhs divided by 12 into how many months? 3 months. एग्जैक्ट अमाउंट आता है अगर आप ठीक से कैलकुलेट करोगे तो. राइट. सो इट विल बिकम, अमाउंट विल बिकम, डेटर्स अमाउंट विल बिकम 20 lakhs. So we got the amount of debtors 20 lakhs. राइट. अभी नेक्स्ट क्या दिया है आपको? स्टॉक डेटर्स. इसके बाद हम लोग लेते हैं इज देयर एनी प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड कैश एंड बैंक बैलेंस. सो कैश एंड बैंक बैलेंस इज टू बी मेंटेन 2 lakhs. रेडीली अमाउंट इज गिवन. सो वही पहले हम लोग लिख लेते हैं ए बी, देन हम लोग लेते हैं सी. कैश एंड बैंक बैलेंस is to be maintained 2 lakhs. तो इधर हम लोग लिख दिया उसको 2 lakhs. रेडी अमाउंट दिया है, उसको कुछ डिवाइड वगैरह नहीं करना है. एंड देन चेक वेदर एनी एडवांस पेमेंट इज गिवन और नॉट. प्रॉब्लम हमें पढ़ना पड़ेगा इसके लिए. देखो देखो लास्ट में सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेएबल हाफ ईयरली इन एडवांस. आधे साल का हम लोग एडवांस पे करते हैं. अभी 1 साल का सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस कितना है? 4 lakh. तो हाफ ईयर का डिवाइडेड बाय 12 करके लेने की जरूरत ही नहीं है. 1 साल का 4 lakh, तो हाफ ईयर का कितना आएगा? 2 lakhs. करेक्ट. सो एडवांस
sales promotion expenses. Now make the calculation of this. अगर आपको दिखाना है तो वैसे भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे पहले किया 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 इनटू हाफ ईयर मतलब 6 मंथ. तो योर आंसर विल बी 2 लाख ही आंसर आएगा. फिर भी चाहिए तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ. 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, दिस विल बिकम योर आंसर ऑफ 1 मंथ इनटू 6, that is equal to 2 lakh. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी और एडजस्टमेंट करंट एसेट्स के लिए नहीं दिया है, तो मेक द टोटल ऑफ दिस. दिस विल बी योर टोटल करंट एसेट्स. ओके, नाउ मेक द टोटल ऑफ दिस टोटल करंट एसेट्स. 12 लाख प्लस 20 लाख 32 लाख प्लस 2 लाख 30 कितना आता है देखो. 12 लाख प्लस 20 लाख आया ना, 32 लाख. कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है आपका 2 लाख. करेक्ट. सो आपका टोटल कितना आएगा ये 36 लाख. करेक्ट. ये आया आपका 36 लाख. ये आपका टोटल करंट एसेट्स है. नाउ रोमन 2 पे जाते हैं हम लोग. रोमन 2 विल बी योर करंट liabilities. In current liabilities, first we have to take A. A में क्या लेना है आपको. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रेडिटर्स से. नाउ सी इन योर प्रॉब्लम, क्रेडिटर्स में क्या दिया है उन्होंने. सी इन योर प्रॉब्लम, क्रेडिटर्स के बारे में क्या दिया है. रॉ मटेरियल्स का रिलेशन क्रेडिटर्स से होता है. कितने मंथ का क्रेडिट है 2 मंथ्स का. 1 साल का कितना है रॉ मटेरियल 24 लाख. तो कैसे कैलकुलेशन होगा देखो. क्रेडिटर्स के लिए 24 लाख ईयरली है, मंथली निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 12 इनटू कितने महीने का बोला है 2 मंथ्स का इनटू 2 मंथ्स. तो आंसर कितना आएगा कैलकुलेट करो और बोलो मुझे. ओके, तो आंसर विल बी 24 डिवाइडेड बाय 12 आएगा 2 लाख इनटू 2 इट विल बिकम 4 लाख. ओके, अभी ये हो गया क्रेडिटर्स. उसके बाद बी में जो भी आउटस्टैंडिंग यानी टाइम लैग है वो हमें लेना है. बी, सी इन योर प्रॉब्लम. सेल्स हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, वेजेस पेड एवरेज टाइम लैग 15 डेज यानी हाफ मंथ. करेक्ट. सो आउटस्टैंडिंग वेजेस बोलेंगे इसको हम लोग. आउटस्टैंडिंग वेजेस 15 डेज बोला है. करेक्ट. सो वी हैव टू कैलकुलेट इट. टोटल 1 साल का वेजेस कितना था 19,20,000 डिवाइडेड बाय 12 इनटू हाफ मंथ यानी 0.5. लेट अस कैलकुलेट इट. 19,20,000 डिवाइडेड बाय 12 ये हो गया 1 साल 1 महीने का इनटू 0.5 हाफ मंथ का कितना होगा 80,000. सो हियर वी हैव टू राइट 80,000. करेक्ट. आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद नेक्स्ट आपका आएगा टाइम लैग और आउटस्टैंडिंग दिया है देखो सी में. सी में हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ईयरली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने वो देखो पहले. मैन्युफैक्चर 1 मंथ इन एरियर्स 1 महीने का एरियर्स. टोटल ईयरली दिया है आपको 24 lakhs. करेक्ट. सो वी हैव टू कैलकुलेट आउटस्टैंडिंग अमाउंट.
24 lakhs divided by 12 into 1 month. तो 24 by 12 divided by 12 आया 2 lakhs into 1 कितना आएगा 2 lakhs. तो outstanding manufacturing overheads you got answer 2 lakhs. Then D we have to consider. D we have to consider so here we have to write outstanding administrative expenses. So what they have given about the outstanding administrative expenses? One month in arrears, right? एक साल का कितना दिया है 9,60,000. So again we have to make calculation. 9,60,000 divided by 12 into 1 month. Okay, so make the calculation. 9,60,000 divided by 12 into 1 month. So it will become 80,000. It will become 80,000. Now we have to make the total of all these. Let us start with the total of all these. Okay, total करना है इसका अभी 4 lakh plus 80,000, 4 lakh 80,000 plus 2 lakh plus 80, 2 lakh 80,000. So it will become 7 lakh 60,000, correct? So this will become 7 lakh 60,000. So ये हो गया आपका 7 lakh 60,000 will be your total current liabilities. This will be your 7 lakh 60,000. Now Roman 3 will be working capital. This answer will be 1 minus 2. Now we have to deduct 36 lakhs में से 7 lakh 60,000 को हमें क्या करना है माइनस करना है. यहाँ पे 7 lakh 60 ऑलरेडी हमारे पास है, फिर भी हम लोग फिर से करते हैं 36 lakhs minus 7 lakh 60,000, that would become 28 lakh 40,000. This will be your working capital required. Okay, I hope तुम लोग को सभी को ये समझ में आया होगा. चलो तो फिर से एक्सप्लेन करती हूँ मैं. सेल से 80 लाख, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट गया 16 lakhs, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिला 64 lakhs. नाउ स्टिक ऑन आवर फॉर्मेट. नंबर 1 इज करंट एसेट्स. इन करंट एसेट्स रोमन 1 इज स्टॉक. स्टॉक में पहला स्टॉक आएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. एक साल के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत है 24 lakhs और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2 months बोला है. दैट्स व्हाई 24 lakhs divided by 12 into 2. तो आंसर आया आपका 4 lakhs. Stock of finished goods is always calculated at cost of goods sold, which is 64 lakhs yearly. So for calculation of monthly, we have to divide by 12 into 1.5 महीने का स्टॉक बोला था इसलिए 1.5 months, तो आया आपका 8 lakhs. 4 lakh plus 8 lakh, टोटल स्टॉक हो गया 12 lakhs. Debtors at selling price. डेटर सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऑल सेल्स आर एज्यूम एज अ क्रेडिट सेल्स, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है.
So 80 lakhs divided by 12 into 3 months, तो ये आया 20 lakhs. Cash and bank balance readily available है. Advance sales promotion expenses 4 lakh yearly है and half yearly advance बोला है, तो divided by 12 into 6 month तो आया 2 lakhs. Total of current assets आया 36 lakhs. Then current liabilities में creditors related to raw materials yearly है 24 lakhs divided by 12 and creditors 2 months है इसलिए 2 तो आया 4 lakh. Outstanding wages yearly दिया है 19,20,000 divided by 12 करोगे तो 1 month का आंसर मिलेगा और 15 days टाइम लगे इसलिए 0.5 तो आया 80,000. Outstanding manufacturing expenses same divided by 12 और 1 month का arrears बताया तो 2 lakhs आया. Outstanding administrative 9 lakh 6